Good morning, my dear student friends. Today we will discuss about difference between prokaryotic and eukaryotic cell. What are the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? Eukaryotic cell. Last class we have just started some points. I had told you about prokaryotic and eukaryotic, but today we will discuss in detail what are the main difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So first come to prokaryotic cell. This prokaryotic is the combination of two Greek words, pro plus karyon. Pro plus karyon, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? प्रोकैरियोटिक. Pro means primitive or old type, and karyon means nucleus. Cell having primitive or old nucleus are known as prokaryotic cell. Similarly, what is eukaryotic? It is the combination of two Greek words, eu plus karyon. Eu plus karyon. Eu means true or advanced, and karyon means nucleus. So those cells having advanced nucleus are eukaryotic, and those cells which are having primitive nucleus known as a prokaryotic cell. So one example we have taken about prokaryotic cell is bacteria. One example, many examples are there, we will discuss later. So prokaryotic, one example, best example is bacteria, and eukaryotic, plant, animal or fungi. So first, what is this primitive nucleus? Already I had told you, recall and tell me. What is primitive nucleus? Primitive means those nucleus which are not having nuclear membrane and nuclear loss. जो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर लॉस नहीं होगा. तो अगर देखें, थोड़ा रिकल करें, तो बैक्टीरिया को देखेंगे तो in case of bacterial cell, what you find inside their cell, this structure is not called as a nucleus. It is not nucleus. Then what is the name of this structure? This is called nucleate. Nucleate or xenophore or prochromosome. Nucleate. So nucleates. So what is nucleate? Nucleate is the false nucleus. It is not true nucleus. There is no nuclear membrane and nuclear loss. So first point about prokaryotic cell. Already I have given the note. Okay. According to note you have to read. First point. See the first point in the note. You keep the note with you. So first is prokaryotic. The prokaryotic are primitive type of cell with incipient nucleus. Incipient. First point. It contains incipient nucleus. Incipient nucleus means that false nucleus or nucleate, xenophore, whatever that may be. Already many names we have discussed. Nucleate, xenophore, prochromosome, incipient nucleus. वही incipient nucleus है. So first point completed about prokaryotic cell. These are the primitive type of cell with incipient nucleus. But these are advanced type of cell, because U means true or advanced. Advanced type of cell with true nucleus. इनके पास true nucleus मिलेगा. तो first point लिखना पड़ेगा. Prokaryotic have incipient nucleus. Eukaryotic cells have true nucleus. क्यों इसको true nucleus बोले? थोड़ा याद करो. In case of plant cell, if you look at the plant cell, at the center there is a spear-like structure, and that spear-like structure is known as nucleus. This spear का नाम क्या था? Nucleus. And this nucleus is covered by a covering, nuclear membrane, and in addition to covering, there is nuclear loss. Inside that, some small spherical structures are there called as nuclear loss. If there is presence of nuclear membrane and a nuclear loss, minimum these two, actually 4 parts are there, but ये दोनों होना चाहिए. If there is presence of nuclear membrane and a nuclear loss, that is called true nucleus. तो second point क्या जाएगा? First point था, these are the primitive type of cell with incipient nucleus. These are advanced type of cell with true nucleus. Next point about prokaryotic and eukaryotic. This in case of prokaryotic cell, there is no nuclear membrane and nuclear loss. Nuclear membrane and nuclear loss absent. Nuclear membrane and nuclear loss absent. Nuclear membrane and nuclear loss absent. But in this case,
In case of eukaryotic cell, nuclear membrane and nuclear loss present. Nuclear membrane and nuclear loss present. Nuclear membrane, nuclear loss absent. Here nuclear membrane and nuclear loss present. तो अभी देखे तो ये दोनों न्यूक्लियस को कौन सा न्यूक्लियस तुमको वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड मींस डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड. The nucleus of eukaryotic cell is highly developed. So well-organized nucleus is found in the eukaryotic cell, but well-organized nucleus is absent in case of prokaryotic cell. So well-organized nucleus absent. Well-organized nucleus absent in case of prokaryotic cell. Absence of well-organized nucleus. Absence of well-organized nucleus. Well-organized न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस absent. लेकिन यहां पर क्या देखेंगे? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस absent in case of prokaryotic cell. Well organized nucleus present in case of eukaryotic cell. Another important difference what already we have discussed is the about organelles. Organelle, last class I had told you about three types of organelle. Some are double membrane, some are single membrane, some are membraneless. If you look at this prokaryotic cell, in the cytoplasm matrix, this part is the cytoplasm matrix. Recall, this part is the cytoplasm matrix. This cytoplasm matrix do not contain any membrane-bound organelle. Membrane-bound organelles are absent in the cytoplasm matrix. But at the same time, if you look at the eukaryotic cell, this is one eukaryotic cell. membrane-bound organelles are present. जैसे कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्या बोले नेम? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तीनों था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन, गल्गी कॉम्प्लेक्स, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस, राइबोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल मिलेंगे. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बट हियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. ओनली राइबोसोम आर प्रेजेंट. ओनली राइबोसोम, ओनली क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा. सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पर एब्सेंट होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट. क्या क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल याद करो, लिस्ट बताया था लास्ट क्लास. लिस्ट कैसे याद करोगे? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, उनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड. सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पर एब्सेंट होंगे. तो ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम, डायक्यूल, ग्लाइकोसोम, ये सारे के सारे एब्सेंट होंगे. लेकिन यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एज वेल एज मेम्ब्रेनलेस. मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे, मेम्ब्रेनलेस भी होंगे. लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज, इन द प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम इज प्रेजेंट. राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस एंड राइबोसोम इज प्रेजेंट. ये भी बताया था राइबोसोम दो तरह का होता है. एक होता है 70s अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, 70s 80s. लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो कितना टाइप का? 70s राइबोसोम. इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज 70s राइबोसोम. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अगर यूकैरियोटिक सेल देखेंगे हमको दोनों टाइप का राइबोसोम मिलेंगे. कुछ राइबोसोम मिलेंगे 70s टाइप और कुछ राइबोसोम मिलेंगे 80s. तो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. Both 70s and 80s ribosomes are present in case of prokaryotic, in case of eukaryotic cell, but in case of prokaryotic cell only 70s ribosome is present. तो ये डायग्राम में दिखा दिया, only 70s, here both 70s and 80s. Another important difference is compartmentalization. Compartmentalization. ये compartmentalization क्या होता है? लिसन क्या करो, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट लिखा हुआ है. कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस सेपरेशन. कंपार्टमेंट्स और मेकिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स. कंपार्टमेंट का मतलब होता है चैम्बर, क्लियर, और स्पेस. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ चैम्बर्स. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो चैम्बर because no membrane bound organelles are there. But if you come to eukaryotic cell, in eukaryotic cell double membrane bound organelle is there, membrane bound. तो जब membrane bound organelle आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक चैम्बर बन जाएगा. दिस इज द चैम्बर.
inside this compartment or this chamber ATP formation takes place because mitochondria helps in ATP formation. Similarly, this is plastid, this is another chamber. Due to presence of this membrane, another chamber is formed, and inside this chamber photosynthesis takes place, and photosynthesis is only carried out by plastid. ATP formation is only carried out by mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट होंगे. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे कि एक एग्जांपल ले जाएंगे. लेट सोचो एक बड़ा शहर है, एक बड़ा शहर में तुमको स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, सिनेमा, मार्केट कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड. अगर हम एक बड़ा सा शहर को देखें, एक शहर का बाउंड्री है, क्लियर, दिस इज द बाउंड्री लाइन. इनसाइड दिस सिटी यू फाइंड देयर इज हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का एक बाउंड्री होता है कि नहीं. लेट दिस इज द हॉस्पिटल एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल का जितने काम ये इस बाउंड्री के अंदर होगा या बाउंड्री के बाहर होगा? बाउंड्री के अंदर होगा. सिमिलरली दिस इज द स्कूल, लेट दिस इज द स्कूल, और स्कूल का काम, पढ़ाई, जितना भी टीचर, स्टूडेंट, वो सब वही बाउंड्री के अंदर रहेंगे. तो क्या हुआ, इस स्कूल का एक कंपार्टमेंट बन गया, हॉस्पिटल का एक कंपार्टमेंट बन गया, मार्केट कॉम्प्लेक्स का एक कंपार्टमेंट बन गया. तो हर फंक्शन के लिए एक एक कंपार्टमेंट हो जाएगा. इस कंपार्टमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन. तो यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट. ये चीज याद रखना होगा. कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ये प्रोकैरियोटिक सेल में तुमको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, मींस कंपार्टमेंट नहीं. मेम्ब्रेन होगा तो एक बाउंड्री बनेगा ना, एक बॉक्स बनेगा या कंपार्टमेंट या चैम्बर जो भी. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इफ यू कम टू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है बताओ? This is the fluid part, semi-fluid substance or gel-like substance which is present inside the cell. It is observed in case of eukaryotic cell, this cytoplasm matrix, this fluid part where the organelle is present, जो फ्लूइड के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं उसको साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स बोलते हैं. दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स. दिस साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कंटिन्यूअसली रोटेट ड्यू टू ए स्पेशल फोर्स. बताऊंगा वो फोर्स क्या है, बहुत सारे तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे फोर्स. यहाँ पर ओनली याद रखो क्या, due to a special force this cytoplasm matrix cytoplasm matrix always rotates. कैसे रोटेट करेगा, क्लियर. एंड दिस रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल में एक स्पेशल प्रोसेस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और इसको साइक्लोसिस भी बोलते हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड साइक्लोसिस प्रेजेंट. अगर क्वेश्चन आया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस कौन सा सेल में दिखाई देगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पर नहीं होगा. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग absent in case of prokaryotic cell but present in case of eukaryotic cell. This is all about cytoplasm streaming. But another important, अगर ये दोनों सेल को कंपेयर करें, छोटा कौन सा दिखाई देगा? जनरल आइडिया, आज देयर इज लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. यहाँ पर बहुत सारी चीज एब्सेंट होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज प्रेजेंट होता है. तो यूकैरियोटिक सेल का साइज हमेशा ज्यादा रहेगा. तो यूकैरियोटिक cells are larger in size but prokaryotic cells are small. Eukaryotic cells are large, prokaryotic are small. Prokaryotic are smaller in size but eukaryotic cells are large in size. अगर साइज को देखें, large size तो स्मॉलर साइज के लिए वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं, उनका नंबर जल्दी बढ़ जाता है. तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर एंड डिवाइड मोर रैपिड. उसका स्पीड ऑफ डिवीजन करने का कैपेसिटी, नंबर ज्यादा करने का कैपेसिटी वहां पर फास्ट होगा. तो प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर एंड डिवाइड मोर रैपिडली बट यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर एंड डिवाइड स्लोली.
उनका डिवीजन, उनका नंबर बढ़ाने का जो प्रोसेस वो स्लो रहेगा। तो ये वाला रहा इंपोर्टेंट डिफरेंस। और एक इंपोर्टेंट डिफरेंस अगर देखें तो उनका न्यूक्लियस के बारे में, यहां पर तो ट्रू न्यूक्लियस, यहां पर तो न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए था। याद करो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखे, डीएनए कैसा था थोड़ा याद करो। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये भी बताया था। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, कितना स्टैंड है, 2 स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा बैक्टीरिया का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डीएस मींस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, double standard circular DNA, and this DNA is not associated with histone protein। उनके साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिल जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट बट हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा और क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन एब्सेंट। ये दो चीज बहुत बार क्वेश्चन में आता है, क्लियर। तो ये दोनों को याद रखना पड़ेगा। In case of prokaryotic cell, DNA is double stranded circular and histone absent। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसलिए लास्ट क्लास बताया था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उसके साथ कुछ मिल जाएंगे आरएनए और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नहीं बताया था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर हिस्टोन एब्सेंट। अगर क्वेश्चन पूछा है हिस्टोन कहां पर एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बट यूकैरियोटिक सेल एट द सेम टाइम, इफ यू लुक एट द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक का कुछ डीएनए को ले आए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर डीएनए को निकाल के ले आए, डीएनए कैसा होता है, लैडर देखे हो, लैडर। तो लैडर का स्ट्रक्चर जैसे होता है, लैडर 2 स्टैंड होगा और 2 स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होंगे। तो जैसे लैडर होता है, लैडर जैसा होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लैडर नहीं होता है। ये लैडर का एक पॉइंट फिक्स कर दो और एक पॉइंट को ऐसे रोटेट करते जाओ। ये वाला पॉइंट फिक्स कर दो, ये वाला पॉइंट को रोटेट करो। अगर ए वाला पॉइंट को फिक्स करके लैडर का ए वाला पॉइंट को रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, वही लैडर ऐसे बन जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। तो ट्विस्टेड लैडर, एक ट्विस्टेड लैडर जैसा डीएनए दिखाई देगा। तो डीएनए बहुत बार पूछता है डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डीएनए का डिफरेंस क्या है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलाइकल। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलाइकल। ये जो ट्विस्टेड डीएनए को हेलाइकल डीएनए बोलते हैं, हेलाइकल डीएनए, ट्विस्टेड, क्लियर। ये ट्विस्टेड वाला डीएनए तो हेलाइकल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड हेलाइकल डीएनए, हेलाइकल डीएनए तुमको याद रखना पड़ेगा। डबल स्टैंड मींस 2 स्टैंड होगा। यहां पर भी डबल स्टैंड है, 2 स्टैंड है कि नहीं, डबल स्टैंड है लेकिन शेप कैसा, सर्कुलर। यहां पर भी 2 स्टैंड है, लैडर का 2 स्टैंड है कि नहीं, 2 स्टैंड, डबल स्टैंड लेकिन हेलाइकल, ऐसे ट्विस्टेड होगा तो हेलाइकल। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक में, डबल स्टैंडर्ड हेलाइकल डीएनए होगा यूकैरियोटिक में। सेकंड डिफरेंस क्या है, हिस्टोन। हिस्टोन इज एब्सेंट बट हिस्टोन प्रेजेंट। इट इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल एंड एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, हेलिकल मींस ट्विस्टेड एंड एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर। तो इंपोर्टेंट डिफरेंस, ये वाला इंपोर्टेंट डिफरेंस रहा। तो और एक इंपोर्टेंट डिफरेंस देखेंगे जो लास्ट क्लास बताया था, मेसोजोम के बारे में। अगर बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया का एक्टिव प्रोडक्शन कहां पर होता है, यहां तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इफ यू लुक एट द बैक्टीरियल सेल, लेट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, दिस सेल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू साइटोप्लाज्म। ये वाला भी बताया था, लेट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तीनों कवरिंग होता है बैक्टीरिया के, तीनों कवरिंग नहीं दिखाता हूं, क्या क्या। द आउटर कवरिंग इज ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन समटाइम फोल्ड इनसाइड, तो इनसाइड फोल्ड हो जाता है ऐसे। समटाइम दिस सेल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, होता है कि नहीं। दिस सेल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड एंड फॉर्म ए पॉकेट, एंड दिस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ए मेसोजोम। ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेसोजोम। एंड दिस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मेसोजोम हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो एटीपी फॉर्मेशन होगा, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो
क्या एटीपी फॉर्मेशन होगा। रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर तुम्हारा है रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पर ओनली याद रखो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होने के बाद एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मेसोजोम, क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल अगर देखें, इन यूकैरियोटिक सेल द सेम फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एरोबिक रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट हेल्प्स, मेसोजोम हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यूकैरियोटिक सेल ले जाए तो कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए एक पॉइंट बोला था लास्ट क्लास, द मेसोजोम आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस मींस फंक्शन सेम, ओनली जगह डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन सेम। मेसोजोम का फंक्शन बैक्टीरिया में जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन वही इन यूकैरियोटिक सेल में वही होता है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस देखें, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस बताया था, फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस करने का भी एबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का। फोटो मींस लाइट, लाइट को यूज करके फूड बनाने का कैपेसिटी कुछ बैक्टीरिया के पास भी होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस एबिलिटी अगर देखें, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। अगर फोटोसिंथेसिस देखें, ये प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए एक क्रोमाटोफोर है, क्रोमाटोफोर ये भी बताया था, क्रोमाटोफोर ये भी एक इनफोल्डिंग है। जैसे मेसोजोम इनफोल्ड हो गया, ऐसे मेम्ब्रेन कभी कभी और एक इनफोल्डिंग बनाया जिसको क्रोमाटोफोर। एक क्रोमाटोफोर का बहुत सारे नेम होता है, अदर नेम क्रोमाटोफोर और कार्बोक्सिजोम और क्लोरोजोम, कार्बोक्सिजोम, कार्बोक्सिजोम और क्लोरोजोम, क्लोरोजोम और लामेली, क्लोरोजोम और लामेलोजोम और लामेली, ऐसे बहुत सारे नेम होता है। लेकिन तुम क्रोमाटोफोर ओनली याद रखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखो। तो क्रोमाटोफोर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन यूकैरियोटिक में क्रोमाटोफोर ऐसा कुछ नहीं। यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड कभी कभी बोलते हैं, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमाटोफोर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो इसके बाद और एक पॉइंट देखेंगे, these are the main or important points about prokaryotic and eukaryotic difference. Another difference is the surface structure. अगर देखें, bacteria, in case of bacterial cell, let this is the covering of bacteria. So from the surface of bacteria, flagella arises. Last class I had told you what is flagella. Flagella is a hair-like structure and it consists of three parts. एक है basal body, एक है hook, hook is the thickest part, ये वाला भी बताया था, and filament. ये तीनों को मिला के बोलते हैं flagella. Flagella. Flagella is found in prokaryotic cell as well as flagella is found in eukaryotic cell. अगर ये flagella को देखें, flagella is made of a flagellin protein. Last class बताया था flagellin, flagellin protein. In case of prokaryotic cell, flagella is made of flagellin protein and it is a single stranded. single stranded, single stranded का मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड इसके अंदर होता है। जैसे डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए के पास कितना स्ट्रैंड होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर बैक्टीरिया का फ्लैजेला पूछा, प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला कैसे रहेगा, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द फ्लैजेला, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द फ्लैजेला आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। बट उस टाइम में अगर वही फ्लैजेला को देखें यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में भी फ्लैजेला होता है। जैसे याद करो एक सेल स्पोर, ह्यूमन का स्पोर, ह्यूमन इज एनिमल, ह्यूमन का एक स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल। In case of sperm cell, you find a tail-like structure like this. This part is called flagella. तो human sperm में 10th में पढ़े हो, human sperm can move due to presence of this tail. This tail part is called flagella. And human is a eukaryotic cell because all animal, plant and fungi are eukaryotic cell. तो यहाँ पर जो flagella देखेंगे, वही flagella अगर prokaryotic देखेंगे, it is a single stranded and made of flagellin protein. But in case of eukaryotic cell, it is 11 stranded. कितना strand होगा? 11 stranded and made of tubulin protein. कौन सा प्रोटीन होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन।
इट इज मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको याद रखना पड़ेगा। तो इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मेड ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन, इट इज 11 स्टैंडर्ड एंड मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये अंतर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये फ्लैजेला में अंतर आएगा। क्लियर? तो इसको याद रखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज फ्लैजेला को छोड़ के हम देखे थे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज ए न्यूक्लियड, यहाँ पर न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल देखें, एक प्लांट सेल देखें, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा डीएनए मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, अभी डिस्कस किए, एक लैडर जैसा डीएनए मिलेगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल देखें, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियड के बाहर और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी मिलते हैं। लास्ट क्लास बताया था एक्स्ट्रा डीएनए, ये एक्स्ट्रा डीएनए का नाम क्या बताओ? प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का डेफिनेशन भी बताया था लास्ट क्लास। These are extra chromosomal double standard circular DNA. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मीन्स क्रोमोसोम के बाहर और न्यूक्लियड के बाहर है, ये सब बाहर है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं होता है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड प्रेजेंट, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट। प्लाज्मिड, अगर क्वेश्चन पूछा यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट या एब्सेंट, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड एब्सेंट। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मींस क्रोमोसोम के बाहर जो डीएनए, सिमिलरली यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर तुमको डीएनए मिलेगा। ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर कहां पर? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बताया था, थोड़ा याद करो, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड और एक है न्यूक्लियस। तीनों, न्यूक्लियस तो कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए मिलेगा। इन न्यूक्लियस के बाहर अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, प्लास्टिड के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, लेकिन उनको प्लाज्मिड नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो ऑर्गेनेल के अंदर होते, ये सब फ्री होते, दीज आर नॉट फाउंड इनसाइड ऑर्गेनेल, इसलिए उनका नाम प्लाज्मिड। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड जैसा कंप्लीट एग्जैक्ट लाइक प्लाज्मिड, लेकिन प्लाज्मिड टर्म यूज नहीं कर पाएंगे, उनको ओनली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बोलेंगे और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो अगर क्वेश्चन आया यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट और एब्सेंट, आंसर होगा प्लाज्मिड एब्सेंट। लेकिन क्वेश्चन पूछा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है कि नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट ओनली इनसाइड टू ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये तो नॉर्मल डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां पर मिलेगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये दोनों ऑर्गेनेल बहुत बार आया है क्वेश्चन, डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां पर मिलेगा, ये सबको याद रखना होगा। और एक डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन, सेल कैसे डिवाइड करेगा? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, एक सेल जब डिवाइड करेगा to form new cell, how the cell division takes place. In class 9 you have read about cell division. Cell division are two types, one is mitosis, meiosis, जो कोष विभाजन बोलते हैं हिंदी में। तो सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस, अर्ध विभाजन। तो माइटोसिस एंड मेयोसिस दो तरह का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन जाएगा, मेयोसिस में एक सेल से चार सेल प्रोड्यूस होंगे। वो उसमें क्या होगा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखो, जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस मेयोसिस होता है यूकैरियोटिक सेल में। और ये माइटोसिस मेयोसिस के टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस यूकैरियोटिक सेल को अगर देखें, यूकैरियोटिक सेल, लेट दिस इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक सेंट्रियोल होता है ऑर्गेनेल, सेंट्रियोल, लास्ट क्लास बताया था, आरसीबी, याद करो, आरसीबी एमाइड, आरसीबी राइबोसोम, सेंट्रियोल बासाल बॉडी। क्या करेंगे, ये सेंट्रियोल कुछ लॉन्ग फाइबर रोप जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, थ्रेड रोप जैसा स्ट्रक्चर, उसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जाके किसको अटैच होंगे? क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम, इसका नाम है क्रोमोजोम।
क्रोमोजोम, लास्ट क्लास बताया था हमारा सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है। ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फाइबर जाके क्रोमोजोम का अटैच हो जाएंगे, क्रोमोजोम दे विल अटैच टू द क्रोमोजोम। तो ये वाला जो डिवीजन है क्रोमोजोम के साथ अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर, ये ओनली तुमको माइटोसिस और म्योसिस में दिखाई देगा, माइटोसिस एंड म्योसिस। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्पिंडल फाइबर कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट बीच में सेल डिवीजन हो जाता है। ऐसा आएगा सेल बीच में एक क्या होगा, बीच में एक बाउंड्री फॉर्मेशन हो जाएगा और सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे होता है सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी स्पिंडल फाइबर दिखाई नहीं देगा, इसलिए ए वाला डिवीजन को प्रोकैरियोटिक सेल में ए वाला सेल डिवीजन को अमाइटोसिस बोलते हैं। अमाइटोसिस ए लग जाएगा, माइटोसिस से पहले ए लग जाएगा। म्योसिस नहीं होता है, ओनली अमाइटोसिस, क्योंकि दो सेल प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर माइटोसिस में एक से कितना प्रोड्यूस होगा, दो, म्योसिस में एक से 4 प्रोड्यूस होगा। तो माइटोसिस में हमेशा 2, यहाँ पर भी माइटोसिस जैसा होता है, 1 से 2 बन जाएंगे, 4 नहीं 2 बन जाएंगे, इसलिए माइटोसिस वर्ड लिखा है लेकिन ए लगा दिया। ए मींस absence ऑफ समथिंग इन द माइटोसिस। absence क्या absent हुआ, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर इज absent इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो दिस इज अमाइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन, बट दिस इज माइटोसिस एंड म्योसिस। This is all about the important differences between prokaryotic and eukaryotic cell. लास्ट में अगर देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कुछ एग्जांपल तुमको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ एग्जांपल्स, यूकैरियोटिक की भी कुछ एग्जांपल तुमको याद रखना पड़ेगा। डिफरेंस तो क्लियर हो गया। डायरेक्ट तुमको नोट से एक बार पढ़ना है और लेक्चर एक बार देखने के बाद तुम्हारा हर पोर्शन क्लियर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो अगर एग्जांपल को आए, एग्जांपल बहुत बार आता है क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आएगा नीट में, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, यहाँ पर तुम ओनली याद रखो। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक का एक फॉर्मूला से हम याद रखेंगे, माय बिजी आफ्टर बैक इन रॉकेट, बैक इन रॉकेट। बिजी है तो टाइम नहीं होगा, तो इसलिए रॉकेट में बैक करेंगे, कहां पर जाएंगे तो माई स्टार्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा फर्स्ट इज माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये भी बताया था, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। बीजी मींस बीजीए, ब्लू ग्रीन algae। बी स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन algae, ब्लू ग्रीन algae शॉर्टली रिटन एज बीजीए। और इसका और एक नेम है सियानोबैक्टीरिया, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, सियानोबैक्टीरिया। माय बीजी एक्टर, बीजी कंप्लीट हो गया, एक्टर से एक्टिनोमाइसेटिस। देन बैक से ओनली बैक्टीरिया उसका बड़ा भाई सियानोबैक्टीरिया। देन रिकेट्सिया। तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तुमको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल क्या क्या है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जितने बच जाएंगे सब यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक सेल एक बार याद हो गया, जितने बच जाएंगे, क्या क्या यूकैरियोटिक सेल में तो आएंगे, प्लांट सेल नंबर 1 आएगा, प्लांट सेल, सेकंड आएगा फंजी सेल, थर्ड आएगा एनिमल सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट, fungi and animal, these are example of eukaryotic cell. Mycoplasma, blue green algae, cyanobacteria, actinomycetes, bacteria, rickettsia, these are example of prokaryotic cell. तो सारे के सारे चीज मैं याद करवा दूंगा क्लास के अंदर ही फॉर्मूला देके, ओनली तुमको अच्छे से लेक्चर को देखना है। क्लियर? तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आएगा मैं लास्ट क्लास बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पोर्शन से आएगा। क्लियर? So these are the main or important difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास मेरे को आंसर बोलना है। नेक्स्ट क्लास हम आंसर डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन? राइट द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू।
light ray from exterior of cell, exterior of plant cell means eukaryotic cell के बारे में बोल दिया. A light ray from exterior, क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को सुनो. A light ray from exterior of plant cell enters to center of nucleus. न्यूक्लियस के सेंटर को चला गया. through enters into center of nucleus by crossing one mitochondria, two lysosome and two ribosome. Then calculate the maximum number of times the light ray crossed membrane. कितने टाइम, मैक्सिमम टाइम वो मेम्ब्रेन को क्रॉस किया. क्वेश्चन को समझाता हूं थोड़ा, देखो. लेट दिस इज ए प्लांट सेल का दो कवर रहेगा. क्या है? बाहर में सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन. तो ये लाइट रे फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ सेल, वो बोलता है कि एक लाइट रे फ्रॉम एक्सटीरियर मींस बाहर, इंटीरियर मींस अंदर. लाइट रे फ्रॉम एक्सटीरियर सेल एंटर्स इनटू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कहां पर होता है? ऑलमोस्ट सेंटर. न्यूक्लियस इज डबल और सिंगल? डबल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन. तो डबल मेम्ब्रेन जब न्यूक्लियस के सेंटर पहुंचेगा तो उसका मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा. ऐसे ओनली न्यूक्लियस को नहीं, वो बोला है क्या? एंटर्स इनटू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस बाय क्रॉसिंग वन माइटोकॉन्ड्रिया. वो एक माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्रॉस करेगा और दो लाइसोसोम को भी क्रॉस करेगा और दो राइबोसोम, यहां पर तो स्पेस नहीं, राइबोसोम, दो राइबोसोम को भी क्रॉस करेगा. तो क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कितना क्रॉस करेगा? तो आंसर नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे. तुम इसको सॉल्व करके रखना है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो एंट्रेंस में आएगा. तो फॉर today's class this much main difference you have to remember prokaryotic, eukaryotic, and you have to solve this question. Okay, this much for today. Thank you to all.